So guys, today जैसे कैट का 75th डे है, we are going to solve the final paper and that is actual कैट का IIM लखनऊ का पेपर, कैट 2017 का पेपर. Now this is one paper जो मैंने ऑलरेडी कैट के क्रैकेविटिस के जो स्टूडेंट्स है कैट 75 हार्ड वाले उनके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट नाउ फॉर यूट्यूब आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस. तुम बाकी कुछ मत करो, जस्ट देखो दैट मैं कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूँ. जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, सी व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द क्वेश्चंस के सॉल्व करने जैसा है, इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया, कैसे इसको सॉल्व करना है, एंड जस्ट लुक एट माय अप्रोच टुवर्ड्स द LRDI के क्वेश्चंस. इफ यू आर एबल टू डू दिस एंड इफ यू आर एबल टू replicate this in the paper that is coming on 26th of November, trust me, it will be a very good thing for you. So before we start, I would love for you to just click the like button. It takes a lot of effort ये पूरा वीडियो बनाने के लिए. क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उनका सोल्यूशंस निकालना पड़ता है. सोल्यूशंस खुद कैसे मैं उनको एक्सप्लेन करूं सो दैट तुम्हें इजीएस्ट तरीके से समझ पाए, ये मुझे करना पड़ता है. सो वन वीडियो टेक्स अबाउट 3 to 4 hours of effort of actually just recording the video. So it will be very helpful if you just click on the like button. चलो, let's start with the paper. ये आ गया अपना CAT 75 hard. Day 75, that is the final day, and for all of you who don't know, 75 days के लिए हमने रोज CAT का पेपर सॉल्व किया and we have tried to find the best solutions for the entire CAT के each and every paper. Let's start. So first, let's start with this question. In this, what they have said is that ये है पैराजम्बल का क्वेश्चन. Now for all of you, I have already posted the video that कौन सी स्ट्रैटेजी, कैसे तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पूरे पेपर में और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. In this, as I have said, for English का section, for the VRC section, what we will be doing is that we'll be solving 2 RCs plus we will be solving 4 more questions. 4 questions will be from parajumble, summary, like para summary, and odd questions. इनमें से हम टोटल 4 सॉल्व करेंगे और आरसी 2 सॉल्व करेंगे. सो दैट इज आरसी के अपने हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस और यहाँ के 4 मिला के अपने टोटल 14 क्वेश्चंस हो जाएंगे. हाउ मच आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस डू वी नीड टू सॉल्व, सॉरी, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस, how much do we need to actually be a 99 percentiler? We need to have 12 questions right or max 13 questions right, giving you 39 marks total. We are solving worth 42 marks. ओके, तो एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ हो जाएगा, चल जाएगा. विल स्टिल बी अ 99 percentiler इन VA सेक्शन. And what if we are a 99 percentiler in all the 3 sections? We will be a 99.8 percentiler in CAT 2023. That is the goal. चलो, let's start. ये वाला क्या दिया है? This is a parajumble. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? That before plants can take life from atmosphere, nitrogen must undergo transformation similar to ones that food undergo in our digestive machinery. Okay. In its aerial form, nitrogen is insoluble, unusable, and it needs transformation. उसके बाद lightning starts the series of chemical reactions. The series, कौन सी series मुझे नहीं पता. इन दोनों में से कोई introductory sentence नहीं मिल रहा है. So ये वाला nitrogen, an essential food for plants, is an abundant resource with about 22 million tons of it floating over each square mile on Earth. Good. This introduces. But nitrogen in its aerial form is insoluble, unusable, and is in need of transformation. Before plants can take it from the atmosphere, nitrogen must undergo transformation similar to ones that food undergoes in digestive machinery. तो 4 to 1 proper line में बैठ रहे हैं. Finally, one of the most dramatic examples of nature of ill wind that blows goodness is lightning. Ill wind that blows goodness का मतलब क्या? This is a saying, this is a phrase that is, कोई बुरी चीज करने से भी कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है. 5 स्टार का ऐड देखा है? कुछ नहीं करके देखो, अच्छा लगता है और अच्छा हो जाएगा. तो कभी कुछ नहीं भी करके देखो, तो वैसा टाइप का है कि तुम कुछ बुरा करोगे, बुरा करने जाओगे बट कुछ अच्छा हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय सेइंग दैट इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस. One of the most dramatic examples of ill wind that blows goodness is lightning. Why? Because lightning starts the series of chemical reaction that need to happen to nitrogen, ultimately helping it nourish our earth. कैसे nourish करता है? Because nitrogen is an essential food for plants. So बाकी का तो हमें order मिल चुका है. So that is why the order here will be 5 3 4 2 1. That is the right order. Okay? चलो. The next one. यहाँ पे क्या दिया है? आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. हमें ऑड क्वेश्चन ढूंढना है. People who study children's language spend a lot of time watching how babies react to the speech they hear around them.
They make films of adults and babies interacting and examine them very carefully to see whether the babies show any signs of understanding what the adults say. So again, reaction of babies to speech. इस पे है पहला और दूसरा. They believe that babies begin to react from a language from the very moment they are born. Reaction के बारे में, but किधर भी birth के बारे में नहीं दिया है पहले और दूसरे में. Sometimes the signs are very subtle, slight movements of baby's eyes or heads or the head or the hands. ये signs के बारे में बात चालू है. They show any signs of understanding. तो 2 and 4 तो related है पक्का. You never notice them if you were just sitting with the child, but by watching a recording over and over you can spot them. ये them मतलब वापस साइंस की बात चालू है. तो 2, 4 and 5 related है. The only one which is bringing in something new, that is birth के बारे में बात कर रहा है, is option 3. So option 3 is what I will say is the odd man out मेरे हिसाब से. Okay, चल. Let's start this one. Alternate summaries. अच्छा, para summary है. This is a para summary question. Okay, चल. North American walnut sphinx moth caterpillars, ये जो भी नाम दिया हुआ है, look like easy meals for birds, but they have a trick up their sleeves. Trick up their sleeves मतलब उनके पास एक तरीका है अपनी जान बचाने का. They produce whistles that sound like a bird alarm call, scaring potential predators away. वो एक ऐसी सीटी बजाते हैं, ऐसा आवाज करते हैं जिससे जो बर्ड्स होते हैं वो डर के भाग जाते हैं. At first, scientists suspect the birds were simply startled by the loud noise, but a new study suggests a more sophisticated mechanism. पहले लगा that वो एक्चुअली बस एक लाउड नॉइज करता होगा इसीलिए बर्ड्स डरते हैं, बट नहीं, वो सिर्फ लाउड नॉइज कर रहे इसलिए बर्ड्स नहीं डर रहे. इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक चीज है जो देखने लायक है, एंड दैट इज द कैटरपिलर्स विसल अपीयर्स टू मिमिक अ बर्ड्स अलार्म कॉल. अलार्म कॉल मतलब क्या? जब अगर कोई बर्ड खतरे में है तो बाकी बर्ड्स, या फिर एक बर्ड ने देखा दैट यहाँ पे कोई खतरा है तो वो चिल्ला के बाकी सब बर्ड्स को बोल देता है दैट सुनो सुनो यहाँ पे खतरा है. दैट इज एन अलार्म कॉल. वो आवाज जैसे ही सुनते हैं, वो अलार्म कॉल जैसे ही आता है, वैसे आजू बाजू के वर्ड्स कुछ भी कर रहे हैं वो लोग भाग जाते हैं कि नहीं खतरे से बचना है. तो अगर वो कीड़े को खाने भी जा रहे हैं तो, और अगर वो अलार्म बजा तो वो बोलेंगे खाना बाद में करेंगे, पहले भाग जाते हैं, जान बचाओ. दैट इज वॉट इट इज. सेंडिंग एवियन प्रेडेटर्स स्क्रैम्बलिंग फॉर कवर, वो जान बचाने के लिए भागते हैं. When pecked by a bird, the caterpillar whistles by comprising their bodies like an accordion. Accordion वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको दबाते हैं तो आवाज निकलता है. Forcing air out through specialized holes in their sides. The whistles are impressively loud. They can measure at 80 decibels from 5 centimeter away from caterpillar. अब 80 decibels एक्चुअली में बहुत लाउड साउंड होता है इतने कम डिस्टेंस में, और इतनी छोटी सी चीज अगर इतना ज्यादा लाउड साउंड कर रही है, सो दैट मीन्स काफी बड़ी बात है. इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू दैट. ओके, तो हमें इसको समराइज करना है. मेन क्या बोला है, दैट वो छोटा सा कैटरपिलर अपने दुश्मनों या फिर बर्ड्स को भगाने के लिए एक आवाज करता है, और ये हाँ मतलब उसके लिए उसके पास स्पेशल बॉडी अकॉर्डियन टाइप की है. लेट्स ट्राई टू फाइंड. नॉर्थ अमेरिकन मॉथ कैटरपिलर्स विल विसल पीरियोडिकली. पीरियोडिकली कहीं भी नहीं दिया है, वो सिर्फ जब जान बचानी है तभी बजाते हैं. North American moth sphinx caterpillars can whistle very loudly. The loudness of their whistles is shocking as they are small insects. Loudness, वो whistle क्यों कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए. वो तो लिखा ही नहीं है, तो ये भी गलत. The North American moth caterpillars, in a case of acoustic deception. Acoustic मतलब auditory related, सुनने में जो deception. Deception मतलब धोखा देने का. So जो सुनने में धोखा दे सके उसके चक्कर में produce a whistle that mimics bird alarm calls to defend themselves. This perfectly summarizes it, but हम पहले फोर्थ देखेंगे. तो ये वाला मुझे लग रहा है that हो सकता है. North American sphinx caterpillar in a case of deception and camouflage. Camouflage का मतलब क्या? अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट में छुप जाना. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं झाड़ियों में हूँ और मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहन के ही जा रहा हूँ तो मैं कैमोफ्लाज हो जाऊंगा. दैट इज कॉल्ड अ कैमोफ्लाज. यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो सिर्फ कान से धोखा दे रहा है. सो ऑप्शन 3 इज द राइट वन. ऑप्शन 3 समराइजेज इट द बेस्ट. ये वाला. द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेट समरीज. सेम पैरा समरी है ये भी. लेट्स गो. A fundamental property of language is that it is slippery and messy and more liquid than solid.
a gelatinous mass that changes shape to fit. मतलब not actually, it's a metaphor that it is like a gelatinous mass. मतलब लैंग्वेज तुम जैसे उसको चाहो उस हिसाब से तुम उसे वो मोल्ड में डाल सकते हो, उस हिसाब से शेप कर सकते हो. As Wittgenstein, कोई होगा साइंटिस्ट, would remind us, usage has no sharp boundary. Oftentimes the only way to determine the meaning of a word is to examine how it is used. वर्ड का मीनिंग समझने का बेस्ट तरीका है दैट वो कैसे यूज होता है उसको सीखो. यही मैं बोलता हूँ वोकैबुलरी के लिए कि वर्ड्स का यूजेज सीखो तो तुम्हें काफी इजी हो जाएगा, तो तुम उसे आराम से याद रख पाओगे, लैंग्वेज सुधर जाएगा. दिस इंसाइट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मीनिंग इन यूज डॉक्ट्रिन. There are differences between meaning in use and dictionary first theory of meaning. The dictionary's careful fixing of words to definitions like butterflies pinned under the glass can suggest that this is how language works. The definitions can seem to ensure and fix the meaning of words, just as the gold standard can carry a country's currency. ये क्या बोल रहे हैं दैट दो अप्रोचेस है, एक मीनिंग इन यूज और दूसरा डिक्शनरी का यूज. डिक्शनरी थियरी इज जो मीनिंग है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट हमें पता है दैट वर्ड का मीनिंग कुछ होता है, हम उसको अलग तरीके से यूज करते हैं कंटेक्सचुअली स्पीकिंग. मतलब फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन पीके मूवी, बट पीके में पता है जब वो पीके जेल में बैठा होता है अनुष्का शर्मा के साथ, तो तब वो क्या बोलता है दैट लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक ही वर्ड अच्छा उसके चार मीनिंग्स निकलते हैं, लाइक अच्छा अच्छा. तो ऐसा वर्ड सेम है बट मीनिंग अलग निकलता है. व्हाट विटगेनस्टीन इज ट्राइंग टू से इज दैट मीनिंग से वर्ड का मतलब समझो, उसके यूजेज से उसका मतलब समझो, डिक्शनरी मीनिंग मत समझो. बिकॉज अच्छा का मीनिंग तो ये भी हो सकता है अच्छा मीन्स वेरी गुड, बट अच्छा इज ऑल्सो यूज्ड इन अ सार्कास्टिक सेंस, ऑल्सो इन एन एंग्री सेंस. तो वही चीज है दैट यूजेज से उसका मीनिंग समझो. What Wittgenstein found in the circulation of ordinary language was a free floating currency of meaning. इन्होंने कंपेयर किया है गोल्ड स्टैंडर्ड के. गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब कि इंडियन करेंसी का इतना ही वैल्यू होगा. अब वो तुम अमेरिका में जाओ, यूके में जाओ, चाइना में जाओ, जापान में जाओ, उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा. इंडियन रुपी का वैल्यू उतना ही रहेगा. 1 INR इक्वल्स टू दिस मच यूएसडी, और 1 INR इक्वल्स टू दिस मच चाइनीज युआन, 1 INR इक्वल्स टू इतना जापानीज येन. ओके, चलो. बट ऐसा लैंग्वेज में नहीं होता. द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड अराइजेज आउट ऑफ द एक्सचेंज. जो वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं उसके ऊपर उसका वैल्यू निकलता है. द लेक्सिकोग्राफर abstracts a meaning of the exchange from meaning from that exchange, which is then set within the conventions of the dictionary definition. मतलब वर्ड का यूजेज जो होता है वो मीनिंग डिक्शनरी में बैठना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड. लेक्सिकोग्राफर मतलब जो एक्चुअली वर्ड्स का मीनिंग डिक्शनरी में लिखता है. ओके, let's see the options. Dictionary definitions are like gold standards: artificial, theoretical and dogmatic. Theoretical नहीं बोल सकते, dogmatic is also a very far-fetched word, बहुत ज्यादा serious word हो गया. Actual meaning of the word is their free exchange value. The actual meaning is somewhere between both of them. ना free exchange value ना ही dictionary वाला, दोनों के बीच में है. ओके, तो ये वाला नहीं. Language is already slippery. Given this, accounting for meaning in use will only exasperate the problem. गलत, ये तो उल्टा बोल रहा है that meaning in use को लेना चाहिए. We should consider meaning in use. तो ये तो उल्टा बोल रहा है, तो ये गलत. Meaning is dynamic, definitions are static. बराबर, meanings change होते रहते हैं but definition same रहता है हमेशा. The meaning in use theory helps us understand that definitions of words are culled, मतलब वो उससे निकलते हैं from the meaning in exchange and not vice versa. तो meaning in use का मतलब क्या है कि जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो मीनिंग यूजेज पे डिपेंड होना चाहिए और अदर वे राउंड नहीं होना चाहिए. दिस वर्क्स, ये मुझे अब तक तो सही लग रहा है. लेट्स गो टू द फोर्थ वन. The meaning of words in dictionary is clear, fixed and less dangerous and ambiguous than the meaning that arises when dangerous, ambiguous जैसे वर्ड्स कहीं भी यूज नहीं हुए तो हम उसको ले ही नहीं सकते, वो हवा में से आया है. That is not something that we can use. Finally, the answer is option 3. This is the right way to solve it. Okay? I hope you guys understood this. चलो, next. RC. So guys, I'll give you some time. I suggest that 3 minutes जितना टाइम लो, ये RC को properly पढ़ो. Wait, I'll turn off my camera. Yeah, read this RC properly. Please make sure that you guys are reading this well.
प्रॉपरली समझो और देखो, नंबर्स को याद मत रखना, सिर्फ मोटा मोटी थोड़ा एक अंदाजा ले लेना दैट वो नंबर्स क्यों बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। ओके, चलो स्टार्ट योर रीडिंग। 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, 3 मिनट के बाद वापस वीडियो स्टार्ट करो। चलो, आई होप तुम लोग ने एक्चुअली 3 मिनट टाइम लेके पैसेज पढ़ा। इट्स अ वेरी नाइस पैसेज। टॉक्स अबाउट हाउ क्रिएटिविटी is naturally a thing that humans have, but slowly as we go over time, slowly as we age, जैसे हम education की तरफ जाते हैं, वैसे the creativity is removed because हमें एक system की तरीके से ही पढ़ाया जाता है, तो सबको सेम तरीके से पढ़ाते हैं, that is why creativity stops। तो वो गलत बात है। एंड बाद में सिटीज का एग्जांपल दिया दैट कुछ सिटीज में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ सिटीज में कम होते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज द लीडर्स। अगर लीडर्स क्रिएटिविटी को मारना चाहते हैं तो पूरा सिटी का क्रिएटिविटी मर जाता है, एंड दोज लीडर्स आर कॉल्ड स्क्वेल्चर्स। ये बताया है पूरे पैसेज में। चलो, लेट्स गो ऑन टू द questions. In the author's view, cities promote human creativity for all of the following reasons, except that they, मतलब ये बोलते हैं दैट सिटीज में ह्यूमन क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ऑप्शंस में से एक वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। कंटेन स्पेसेस दैट एनेबल पीपल टू मीट एंड शेयर आइडियाज, नहीं, उन्होंने बोला है दैट लोग मिलते हैं, शेयर करके तभी आइडियाज क्रिएट होते हैं। Expose people to different and novel ideas because they are home to varied groups of people, same reason, ये गलत है। Provide financial and institutional network that enable ideas to become reality, ये भी गलत है। This is a positive thing, तो इसमें creativity मरनी नहीं चाहिए। And provide access to cultural activities that promote new and creative ways of thinking, ऐसा कहीं भी दिया हुआ नहीं है। Nowhere in the entire passage उन्होंने बोला है that they give access to cultural activities that promote new and creative ways of thinking। उन्होंने सिर्फ बोला है दैट सिटीज में लोग ज्यादा होते हैं और अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो खुद से क्रिएटिविटी अपने आप को मिलके कर लेते हैं, अपने आप से एक दूसरे से मिलके। सो ऑप्शन 4 इज द वन विच इज नॉट राइट, so this is called a negative, हमें नेगेटिव को सिलेक्ट करना था। 4 is what we have to select। चलो, the author uses ironic in the third paragraph to point out that, ये देखो थर्ड पैराग्राफ में ironic यहाँ पे क्यों है। As for what staunches creativity, that's easy if ironic. It is the very institutions that we build to manage, exploit, perpetuate the fruits of creativity. जो हमने institutes खड़े किए हैं, teachers, schools, organizations, bureaucracies, यही सब है जो हमने creativity को use करने के लिए बनाए, उनकी वजह से creativity मर जाती है, वैसा बोल रहे हो। Okay? People need social contact other than isolation to nurture their creativity, नहीं। Institutions created to promote creativity eventually stifle it, ये है आंसर अपना। बाकी आगे पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है, पढ़ लेते फिर भी। लार्जर द क्रिएटिव पॉपुलेशन द मोर लाइकली, नहीं। लार्ज ब्यूरोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर द इनएविटेबल आउटकम, नहीं, इनएविटेबल आउटकम नहीं है, दे आर द रीजन व्हाई क्रिएटिविटी डाइज ऑफ। ऑप्शन 2 इज द राइट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट, बेसिकली सेंट्रल आइडिया यही है दैट लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं तो क्रिएटिविटी बनता है, और क्रिएटिविटी बनाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं। सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू नर्चर क्रिएटिविटी, मेक सेंस। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन ऑल सोसाइटीज, नहीं, वो क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आता है, क्या आता है, ये तो बस उन्होंने एंड में बताया है दैट क्रिएटिविटी मर जाता है। द क्रिएट द क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग इन सोसाइटीज इन लाइन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मोर पीपल शुड वर्क इन जॉब्स, नहीं, दिस इज अ सजेशन। अ सेंट्रल आइडिया कैन नेवर बी अ सजेशन। ओके, द ओनली वन विच फिट्स इज ऑप्शन 1। Jane Jacobs believed that cities are more creative. Cities that are more creative dash have to struggle to retain creativity, नहीं। have to squelch unproductive people, नहीं, ये तो negative effect है जो हो जाता है। have leaders and institutions that do not block creativity, typically do not start off as creative hubs। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, great urbanist Jane Jacobs, some places are more creative than others. She said, question was easy one. All cities were filled with creative people. That's our default state as people. But some cities had more than their share of leaders, people, and institutions that blocked out creativity. She called them squelchers. अच्छा, cities which are more creative.
जो मोर क्रिएटिव होते हैं उसमें स्क्वेल्चर्स नहीं होते. सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन 3. बराबर है. ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. The 1968 study is used here to show that 1968 study मतलब कौन सा वाला है, ये रहा. इन्होंने बताया है दैट 1600 जब बच्चे देखे, बच्चे बहुत क्रिएटिव थे. थोड़े बड़े हो गए तो क्रिएटिविटी कम हो गया. उसके बाद और बड़े हो गए तो क्रिएटिविटी, और फाइनली 25 की एज पे क्रिएटिविटी बस 2% बचा था. दैट लोग क्रिएटिव नहीं होते. जब वो बड़े होते हैं एजुकेशन की वजह से क्रिएटिविटी मर जाता है. As they get older, children usually learn to be more creative. गलत, उल्टा बोल रहे हैं. बड़े होके क्रिएटिविटी मर जाता है. Schooling today does not encourage creative thinking in children, which is right. ये तो बताया हुआ है. The more children learn, the less creative they become. ऐसा नहीं बोला है. Technology today prevents children from being creative. गलत. Option 2 is the right answer. चलो. The author's conclusions about the most creative cities in the US, paragraph 6, is based on the assumption that, एक बार पढ़ लेते हैं paragraph 6. Effects of a colder subnivum and are complex. For example, shrubs as crop. अरे रे, मैं वही सोचू ये तो अलग ही लग रहा है. सॉरी, ये वाला यूनाइटेड स्टेट्स, ये रहा. Creativity follows the general contours of greater socioeconomic divide, our rising inequality that plagues us. According to my estimates, 1/3 of the us across US and half of us in our creative cities are able to do work which engages our creative faculties to some extent, whether as artists, musicians, techies, innovators, entrepreneurs, doctors, lawyers, journalists, or educators. Those of us who work with our minds. That leaves a group that I term the other 66% who toil away in low-wage, rote and remote jobs, if they have jobs at all, in which the creativity is subjugated, ignored or wasted. मतलब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 1/3 मतलब 33% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी यूज होता है. बट देन बाकी 66% वैसे लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते, और वो यूज नहीं करते हैं तो क्रिएटिविटी दब जाती है. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. People who work with their hands are not doing creative work. Yes, ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वही है, who toil in low wage. ये लोग जो है जो वर्क विथ माइंड्स करते हैं, जो माइंड से काम नहीं कर रहे, वो लोग हाथों से काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग विद देयर हैंड्स. तो पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स आर नॉट डूइंग क्रिएटिव वर्क. मेक सेंस शायद. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन नॉन क्रिएटिव जॉब्स. वी कांट से दैट, क्योंकि हमें पता नहीं है दैट कितने लोगों को जॉब एक्चुअली है या नहीं है. आधे लोग या तो उनके पास जॉब्स ही नहीं है शायद, राइट, दे कैन बी जॉबलेस. तो ये गलत हो गया. ओनली आर्टिस्ट म्यूजिशियंस शुड बी वैल्यूड. नहीं, ये तो एकदम एक्सट्रीम हो गया. मोस्ट सिटीज इग्नोर और वेस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ लो वेज वर्कर्स. गलत. द आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज द राइट वन. ओके, चलो. तो दैट इज हाउ वी सॉल्व द फर्स्ट आरसी. आई होप तुम्हें समझा. दिस वाज एन आरसी दैट वाज एक्सट्रीमली डुएबल. आरसी इजी था, लंबा था बट इजी था, डुएबल था. चलो, लेट्स गो टू दिस वन. ये वाला आरसी वापस 3 मिनट लो. रीड दिस आरसी, पॉज द वीडियो, रीड द आरसी एंड देन कम बैक. ओके, चलो. Hello guys. I hope you guys actually read the entire passage. It's a nice passage. Scientific type का है, so that is why I especially like it. मुझे scientific RCs बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. मेरा इंटरेस्ट है, सबका अलग अलग होता है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है दैट ठंडे एरियाज में नॉर्मली देयर इज अ पर्टिकुलर लेयर कॉल्ड सबनिवियम, जिसकी वजह से इंसुलेशन हो जाता है. मतलब बाहर की ठंडी अंदर नहीं जा सकती, और अंदर जो गर्मी रहती है सॉइल के उधर, सॉइल के पास जो गर्मी होती है वो गर्मी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं या फिर प्लांट्स जो सॉइल पे उगते हैं वो जिंदा रह सकते हैं. बिकॉज वेल 0 डिग्रीज में तो जिंदा रहना मुश्किल है. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. उसका इंपॉर्टेंस समझा है. एंड फाइनली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात किया है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने एक पर्टिकुलर पार्ट निकाल दिया. दे रिमूव द पार्ट ऑफ स्नो कवर, सबनिवियम उन्होंने निकाल दिया. और वो सबनिवियम उन्होंने जब निकाला तब वहां की जो स्नो था, वहां पे जो एक्चुअली नीचे का एरिया था, सॉइल थी, वो सॉइल इतनी ठंडी हो गई दैट वहां पे जो प्लांट्स थे वो मर गए. So that means that subnivium is a very important layer of soil and it is extremely important. That is what they are trying to show through this passage. So chalo.
लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस. आई होप तुम लोगों ने प्रॉपर्ली पढ़ा. मैंने तो काफी ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया है, बट तुमने अगर पढ़ा तो ये तुम्हें समझ जाएगा. दिस इज अ गुड इनफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर पैसेज. चलो. The purpose of this passage is to introduce readers to a relatively unknown ecosystem. नहीं. Explain how Subnimium works to provide shelter and food to several species. वो शेल्टर और फूड नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड करता है. आउटलाइन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सबनिवियम. वो तो बस एक पर्टिकुलर पॉइंट डाला है. ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन इफेक्ट ऑफ ब्लैंकेट ऑन ह्यूमंस एंड स्नो कवर ऑन स्पीसीज लिविंग इन द सबनिवियम. यस, ये बोल सकते हैं हम. Because what they are saying is that acha, I am a little confused between 3 and 4. Outline the effects of climate change on the subniveum. Draw an analogy between the effects of blanket on subniveum. I would say that option 3 को हम सही मान लेते हैं, because option 3 is more properly encompassing of actually हो क्या रहा है उसमें. तो yes, option 3 is something that I will select personally. That एक मिनट. हाँ, आई वाज जस्ट वरीड दैट शायद मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग वेस्ट जाता था. सॉरी. ऑप्शन 3 says that outline the effects of climate change on subniveum. Why? Because ऑप्शन सॉरी पैसेज के 6th पैराग्राफ में उन्होंने ये भी बताया है that subniveum ना होने से क्या हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली दे आर इवन टेलिंग अबाउट हाउ टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से सबनिवियम कम हो रहा है. ये सभी बातें उन्होंने बताई है. Therefore, even now, winters are expected to become warmer overall for future climate change. The subniveum will tend to become colder and more variable with less protection from the above ground temperatures. तो वो बता रहे हैं that कैसे फर्क पड़ेगा. So option 3 is the right one. That is the right solution. चलो. All of the following statements are true except कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट झूठ है, ये ढूंढना है. Snow depth and snow density both influence the stability of subniveum. Yes, ये पैसेज directly word to word दिया हुआ है. Climate change has some positive effects on subniveum. नहीं, we just read the part, हमने अभी पैसेज पढ़ा, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है that climate change की वजह से subniveum को negative effect पड़ रहा है. So let's just mark the third one here. And ये वाला तो नहीं दिया हुआ है. So this is not true. Option 2 is the right one. Okay. Based on this extract, the author would support which one of the following actions? कौन से actions को author support करेगा? The use of snow machines in winter to ensure snow cover of at least 8 inches. Natural होता है और artificial होता है. Government action to curb climate change. Yes, ये जरूरी है. Author will support that government climate change को रोकने की try करे. That is a nice way. एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल इन विंटर. नहीं, न्यूट्रिएंट्स मर जाएंगे अगर ठंडा हो गया ज्यादा तो. प्लांटिंग मोर श्रब्स इन एरिया ऑफ शॉर्ट स्नो सीजन. गलत, वो गलत है. ऑप्शन 2 इज द राइट वन. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पैराग्राफ 6 द ऑथर प्रोवाइड्स द एग्जांपल्स ऑफ क्रोबेरी एंड अल्पाइन अजीलिया टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. इधर क्या दिया हुआ है उनके बारे में? क्रोबेरी एंड अजीलिया growing along the forest floor tend to block the wind and so retain higher depths of snow around them. तो वो बोल रहे हैं that इनकी वजह से retain higher depths of snow around them. अगर effects of a colder subniveum are complex, अगर ये जो plants है वो बढ़ जाते हैं तो उनकी वजह से हवा रुक जाती है, जिसकी वजह से जो विंड होती है वो स्नो को लेके नहीं जा सकती, स्नो पिघल नहीं सकती, तो स्नो ज्यादा डीप हो जाता है, तो ठंडी ज्यादा हो जाती है. Despite the frigid temperatures, several species survive नहीं. Due to the frigid temperatures, in the temperate and Arctic regions, plant species that survive tend to be shrubs rather than trees. नहीं, उन्होंने कोई comparison draw नहीं किया है. There is no comparison that has been drawn. The Croberian are abundant in temperate. नहीं. The stability of subniveum depends on several interrelated factors, including shrubs on the forest floor. Yes, ये सही है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही बताया है. इफेक्ट्स ऑफ सबनिवियम आर कॉम्प्लेक्स. श्रब्स से क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताया है. ओके, चलो. Which one of the following statements can be inferred from the passage?
इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम पैसेज में से डायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं? इन एन इकोसिस्टम ऑल्टरिंग एनी वन एलिमेंट हैज रिपल इफेक्ट ऑन ऑल अदर्स। यस, सबनेवियम की ही बात करते हैं। अगर सबनेवियम थोड़ा बहुत यहाँ हिल गया तो फिर एनिमल्स मरने लगेंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो दिस इज अ गुड वन। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स टेम्परेट एंड आर्टिक रीजन्स मोर देन इक्वेटोरियल, ऐसा कुछ कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है। कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ वुल इज वार्मर देन सिमिलर कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ वुल, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। द लॉस ऑफ सबनेवियम वाइल ट्रैजिक विल अफेक्ट ओनली टेम्परेट एंड आर्टिक रीजन्स, गलत। उन्होंने बोला है दैट अगर यहाँ पे इफेक्ट होगा तो हर जगह इफेक्ट होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। सॉरी, सर्कल कर रहा हूँ, हाँ। इन पैराग्राफ 1 द ऑथर यूजेस ब्लैंकेट्स एज अ डिवाइस टू, बेसिकली ब्लैंकेट्स क्यों यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि अगर ब्लैंकेट होता है तो हम गर्म रहते हैं। उन्होंने बस इतना ही बोला है, सबनेवियम से कंपेयर किया है। इवोक द बिटर कोल्ड ऑफ विंटर इन माइंड ऑफ रीडर्स, गलत। एक्सप्लेन हाउ ब्लैंकेट्स वर्क टू कीप अस वार्म, लग तो रहा है ऐसा, यही जो मैंने अभी बोला वो। ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन ब्लैंकेट्स एंड स्नोपैक, नहीं। अलर्ट रीडर्स टू द फेटल इफेक्ट्स, नहीं नहीं नहीं, एक्सपोजर टू कोल्ड का तो कुछ बोला ही नहीं है फेटल इफेक्ट्स का। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन टू इज द आंसर दैट यू शुड मार्क। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, दिस वाज द इंग्लिश सेक्शन। वीए सेक्शन अगर तुमने इतना सा कर लिया इन योर कैट 2023, ट्रस्ट मी यू विल बी अ 99 परसेंटाइलर वेरी इजीली। हमने कितने सॉल्व किए? 6 6, जस्ट 1 मिनट। वी सॉल्व 6, इसके 6 तो 12, 12 एंड 4 3 2 1। वी सॉल्व 16 क्वेश्चंस। मैं तो बोल रहा हूँ 24 में से बस 14 सही करके आओ, यू विल बी डन। ओके, चलो, let's jump to the LR. And before we start with LR, I wanted to inform you guys because I know that CAT आ रहा है and तुम लोग बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, बट वी आर गोइंग टू हैव कैट के बाद क्या करना चाहिए, हाउ डू यू प्रिपेयर योर जीडीपीआई, कैसे दूसरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, मेनली एनबीए सीईटी विच इज गोइंग टू कम इन मार्च। बहुत बार क्या होता है, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द कैट ना, तो कैट के टाइम तुम प्रिपेयर करते करते तुम बाकी एग्जाम्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो स्नैप, एनमैट, जैट, ये तीनों एग्जाम्स नॉर्मली अगर कैट तुमने प्रिपेयर नहीं किया तो ये तीन एग्जाम्स भी नॉर्मली बिगड़ ही जाती है। अगर तुमने कैट का प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दिया बट वो अच्छे से नहीं हुआ है तो फाइनली यहाँ तक तुम्हारा जान खत्म हो जाता है। एंड फाइनली द वन एग्जाम दैट यू कैन टारगेट वेरी वेल राइट नाउ इज सीईटी। अरे, इज सीईटी। तो कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, हाउ डू यू स्टार्ट इट? ऑब्वियसली सीईटी के अंडर द बेस्ट थिंग दैट यू गाइस हैव इज जेबीआईएमएस एंड सिडनम। दोनों के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, दोनों का फीस बहुत कम है, दे हैव अमेजिंग आरओआई। The only colleges which beat JB and Sydenham are in ROI perspective are TIS and FMS. ये दो छोड़ के बाकी सारी कॉलेजेस का आरओआई जेबीआईएमएस और सिडनम को बीट नहीं कर सकता, अमेजिंग आरओआई। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर। बट अगर प्रिपरेशन करना है तो इमीडिएटली स्टार्ट करो प्रिपरेशन। फॉर दिस वी आर गोइंग टू हैव 4 सेमिनार्स, नो मैटर व्हाट सिटी यू आर इन। मोस्ट ऑफ द पीपल हु प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स ये सिटीज में आ जाते हैं और यू कैन ट्रैवल हियर। लास्ट ईयर भी सेमिनार्स रखे थे, वी हैड पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू ऑल ऑफ दीज 4 सिटीज: मुंबई, पुणे, नागपुर एंड नासिक। ये 4 सिटीज में वी आर गोइंग टू हैव आवर सेमिनार्स। द डेट्स फॉर देम आर 10th दिसंबर, पुणे का 24th दिसंबर, नागपुर इज गोइंग टू बी 9th दिसंबर एंड नासिक इज गोइंग टू बी 17th दिसंबर। ये 4 सेमिनार्स होने वाले हैं। फॉर ऑल द डिटेल्स मैं और वीडियोस डालूंगा। टेल मी इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड और टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू कवर इन दीज सेमिनार्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट दैट इज कवर्ड in the seminars. Okay. Also, just a surprise for all of you. Everybody who enters the seminar, everybody who attends the seminars, they actually do get discounts on the course. So that's something that I always do. Last year we kiya tha and students were pretty happy. On top of that, trust me, discount ke liye nahi, but what I'm going to teach you in the seminar, it is going to be amazing. I really suggest you guys come, and I'm telling you not as a teacher or something like that, but genuinely as a friend, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा because मैं काफी अच्छा seminars करता हूँ. Okay, चलो, so let's start with LR.
In an 8 by 8 chessboard, a queen is placed anywhere can attack another piece if the piece is present in same row, same column, or diagonal position in any possible four directions. There is no other piece in between provided there is no other piece in between queen to that piece. The columns are labeled H, A to H, and rows are labeled 1 to 8, bottom to top. The position of a piece is given by combination of columns and row labels. बराबर है, मतलब ये हो जाएगा C7, ये हो जाएगा D5, ये हो जाएगा G3, वैसा। ओ सॉरी, ये तुम लोग को मतलब दिखेगा नहीं, आई एम सॉरी। Yeah, now you can probably see my marker. So this will become C7, this will become E4, ये बन जाएगा G2, ऐसा। ओके, चल। सो नाउ उस हिसाब से सम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज बेसिकली चेस का गेम ही तुम्हें सॉल्व करना है। इफ द क्वीन इज एट C5, द क्वीन इज हियर C5, यहाँ पे है क्वीन, एंड द अदर पीसेस आर एट पोजीशंस C2, अदर पीसेस को अलग कलर में रखते हैं, लेट्स प्लेस देम विथ ग्रीन कलर। द अदर पीसेस आर एट पोजीशन C2, G1, G3, C2, G1, G3, G5 and A3 and A3, ये रहा। हाउ मेनी आर अंडर अटैक बाय द क्वीन? क्वीन कहाँ कहाँ अटैक कर सकती है? क्वीन अटैक कर सकती है या तो हॉरिजॉन्टली, या फिर वर्टिकली, या फिर डायगनली। जैसे हम नॉर्मल चेस खेलते हैं वैसा ही गेम है। तो ये देखो, क्वीन इसको अटैक कर सकती है। लेट्स मार्क दी अटैक बाय ये मरून। तो इसको तो अटैक कर सकती है क्वीन, तो ये गया। इसको भी अटैक कर सकती है क्वीन, इसको भी अटैक कर सकती है। बाद में ये वाला डायगनली देखते हैं। हाँ, इसको भी अटैक कर सकती है, इसको अटैक नहीं कर सकती। सो द क्वीन कैन अटैक 4 पीसेस, दैट्स इट। इफ द अदर पीसेस आर एट पोजीशंस A1, A3, B4, अदर पीसेस को मार्क कर देते हैं A1, A3, B4, D7, H7, D7, H7 and H8. Then which of the following positions of the queen results in maximum number of pieces being under attack? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस को अंडर अटैक लाना है, तो हम क्वीन को कहाँ रखेंगे? लेट्स ऑप्शन सी यूज करते हैं डायरेक्टली। F8, F8 पे रखा तो क्वीन विल बी एबल टू अटैक 1 पीस, 1 2 3 4, 2 पीसेस, 2 पीसेस को अटैक करिए अगर F8 पे रखा तो। A7, A7 में 1 पीस और 2 पीस, वापस 2 पीसेस को अटैक करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट अगर 2 का आंसर 2 आ गया है तो हमें कोई और ढूंढना है जिसका 2 से ज्यादा हो, ये तो पक्की बात है। C1 में इसको अटैक करेंगे एंड डायगनली किसी को अटैक नहीं होगा, तो C1 में तो सिर्फ एक ही अटैक हो रहा है। D3, दिस शुड बी द आंसर। D3 ऑब्वियसली, बिकॉज 3 नहीं है तो चौथा ही होना चाहिए। तो इफ आई वर इन द एग्जाम मैं D3 को चेक भी नहीं करता, मैं डायरेक्टली मार्क कर देता था। बट D3 को एक बार देख लेते हैं, चलो फॉर यू गाइस। D3 अगर मैंने यहाँ पे रखा क्वीन को, तो क्वीन इज हियर, इट कैन अटैक दिस, तो एक आ गया। ये वाले को भी अटैक कर सकते हैं और डायगनली इसको भी अटैक कर सकते हैं, तो क्वीन विल बी एबल टू अटैक 3 पीपल। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4, दैट इज D3 इज आवर आंसर। Now if you understand guys, ये LR set जो normal sets होते हैं वैसा नहीं है, not the ones that we are used to, different kinds of LR set, ऐसा ही कुछ expect करो। ये क्योंकि मैं explain कर रहा हूँ और मैंने चेस बोर्ड वहां पे ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए तुम लोग को बहुत easy लग रहा है। But actually to do this in the exam, students find it very tough, क्योंकि ये imagination में ही नहीं बैठता। You look at a chess and you start thinking अरे बहुत ज़्यादा difficult है, बहुत अलग है। Okay, so that factor is going to factor in when it comes to your CAT exam, तो वो ध्यान रखना तुम। दैट जितना मैं अभी इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में कोई एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से डोंट अंडर एस्टिमेट द क्वेश्चन। इफ अदर पीसेस आर एट पोजिशंस, अदर पीसेस का पोजिशंस रख देते हैं A1, A3, B4, D7, H7, H8, वापस सेम पोजिशंस है। फ्रॉम हाउ मेनी पोजिशंस द क्वीन कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द पीसेस? ऐसा कौन सा पोजिशन है जहां से क्वीन किसी को भी अटैक नहीं कर पाएगी?
तो फॉर दैट लेट्स, जो भी ये लाइन में है हॉरिजॉन्टली सबको कैंसिल कर देते कि कहाँ कहाँ पे क्वीन नहीं हो सकती। ओके, ये सारी जगह पे क्वीन नहीं आ सकती बिकॉज हॉरिजॉन्टल अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली अटैक हो जाएगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल अटैक हो जाएगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल अटैक, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अटैक, यहाँ पे वर्टिकल अटैक, यहाँ पे वर्टिकल अटैक, यहाँ पे वर्टिकल अटैक। ये सारी जगह पे हमने कर लिया दैट क्वीन यहाँ पे तो नहीं आ पाएगी। अब डायगनली भी क्वीन अटैक करती है ना, तो ये वाले में भी क्वीन नहीं आ पाएगी इधर, बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पे भी नहीं आ पाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं आ पाएगी, ये भी गया। तो फाइनली अपने पास बचा कौन सा, ये तीन। द क्वीन कैन बी इन दीज प्लेसेस, ये एक बचा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। हाँ यहाँ पे भी देखो, ये हमने मिस कर दिया। यहाँ पे अगर क्वीन है तो इसकी वजह से डायगनली यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। हाँ ये तो ऑलरेडी गया। इधर हाँ, बिकॉज इसको डायगनली अटैक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं होगा। सो नाउ वी हैव एनी बॉक्स दैट इज लेफ्ट, नो देर आर नो बॉक्सेस लेफ्ट। ये चार बॉक्सेस में वो किसी को भी अटैक नहीं कर पाएगी। सो देर आर फोर प्लेसेस, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 4। Suppose the queen is the only piece on the board and is at the position d5. Queen यहाँ पे है. In how many positions can another piece be placed on the board such that it is safe from attack from the queen? हमें ऐसी पोजीशंस ढूंढनी है जहां पे क्वीन अटैक नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मार्क कर देते हैं सारे क्रॉस वाले। लेट्स फिगर आउट क्वीन कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब कुछ मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे बस फिगर आउट करना है दैट ये जो बचे हुए है उनका नंबर मुझे काउंट करना है। So I'll just count it out. I'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 6 plus 6. 15 plus 12, 27. 27 plus 3, 30. And 36. So the answer should be 36, option 3. That is your solution. Okay? ये यहाँ पे भी मैंने मार्क करना शुरू किया। Yep. सो गाइज आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द एलआर का सेट। अगर समझ के किया तो ये एलआर सेट बहुत जल्दी हो सकता था। अगर नहीं समझे, अगर तुमने समझा दैट अरे ये तो बहुत अलग है, कुछ तो भलता ही पूछा है, आई डोंट नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो फिर ये करना टफ हो जाएगा। बट एक्चुअली एलआर सेट इतना टफ था नहीं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी इन अ स्टेबल एंड ओपन माइंडसेट दैट यू कैन, नो मैटर व्हाट, तुम आराम से विदाउट स्ट्रेस उसको बीट कर पाओगे। ओके, चल लेट्स मूव अहेड। DI. Guys, if you are watching the video, and I know all of you are because इसलिए तुम ये सुन रहे हो, please just hit the like button because trust me, it takes a lot of effort to actually make this video. तुम्हें लगता है दैट ये सब 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर है, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ये पूरा शीट बना हुआ है, माय एंटायर टीम वर्क्स अ लॉट, सो प्लीज जस्ट हिट द लाइक बटन, इट इज वेरी हेल्पफुल। एंड इफ यू कैन, अगर कुछ नहीं कमेंट करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो, एटलीस्ट इवन इफ यू जस्ट कमेंट अ थैंक यू, even that will be very nice because well the YouTube algorithm only will push my videos further to other students अगर तुम लोग वीडियो के साथ एंगेज करते हो तो the more people see my video, the more I'm motivated to start posting more videos for you guys। तो तुम्हारा ही फायदा है, मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा है। मैं एड रेवेन्यू नहीं कमाता, बट आई वुड लाइक माय यूट्यूब टू हैव बेटर व्यूज फ्रॉम इट। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू गाइस हैव हिट द लाइक बटन। एंड अभी बिकॉज एग्जाम आ रही है सीईटी, तो मैं काफी सारा वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डीआई का सेट। मेरे ख्याल से मेरी वीडियो की वजह से तुम्हारा टेक्स्ट कट ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी के लिए वीडियो बंद करता हूँ। हाँ,
At a management school, the oldest 10 dorms numbered 1 to 10 need to be repaired urgently. The diagram represents the estimated repair costs in crores for the 10 dorms. For any dorm, the estimated repair cost in crores is an integer. Repairs with estimated cost of 1 or 2 crores are light repairs. मतलब वही जो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट दो डॉर्म्स है जिनको 1 करोड़ का खर्चा जाएगा, एक डॉर्म है जिसको 2 करोड़ का खर्चा जाएगा, 3 डॉर्म्स है जिनको 3 करोड़ का खर्चा जाएगा, एक डॉर्म को 4 करोड़ और एक डॉर्म को 5 करोड़ और 2 डॉर्म्स को 6 करोड़ का खर्चा जाएगा। ये 2 हो गए हेवी रिपेयर, ये हो गया मॉडरेट रिपेयर और ये हो गया लाइट रिपेयर। ऐसे टोटल कितने डॉर्म्स है अपने पास? देर आर टोटल, अच्छा ओह आई एम रियली सॉरी बट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि जूम पे पावर पॉइंट का माउस नहीं दिखता। तो या व्हाट आई वाज सेइंग वाज, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 डॉर्म्स है जिनको 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ का खर्चा लगेगा। ये एक ही डॉर्म है जिसको 2 करोड़ का खर्चा लगेगा आउट ऑफ ऑल द 10 डॉर्म्स। 3 डॉर्म्स को 3 करोड़ का खर्चा, एक डॉर्म को 4 करोड़ का खर्चा, एक डॉर्म को 5 करोड़ का खर्चा और 2 डॉर्म्स को 6 करोड़ का खर्चा लगेगा। ओके, सो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डॉर्म्स हो गए। तो हमें 10 डॉर्म्स को फिगर आउट करना है दैट कौन से डॉर्म नंबर को कितना खर्चा लगेगा। सो लेट्स फिगर आउट। इसके लिए आगे रूल्स दिए हुए हैं, पहले सारे डॉर्म्स के नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 7 8 9 10। ये डॉर्म नंबर है, खर्चा नहीं है। ओके, मैं खर्चे को रेड में लिखूंगा सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। देखते हैं, ऑड नंबर डॉर्म्स विल नॉट नीड लाइट रिपेयर। तो कोई भी ऑड नंबर डॉर्म्स को मॉडरेट या फिर हेवी रिपेयर लगेगा। इवन नंबर को सिर्फ लाइट या फिर हेवी लगेगा क्योंकि उनको मॉडरेट नहीं है। एंड जिनका डिविजिबल बाय 3 है उनको एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं है, तो 3 6 9 इनको लाइट या फिर मॉडरेट ही रिपेयर लगेगा। फाइन। डॉर्म्स 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट्स। 4 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 ये 6 डॉर्म्स को सबको अलग अलग रिपेयर कॉस्ट लगेगा, तो मतलब ये सब में एक 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 बट जाएंगे। डॉर्म 7 नीडिंग द मैक्सिमम, अगर डॉर्म 7 को मैक्सिमम खर्चा लगता है तो उसको जाएगा 6 करोड़ का खर्चा। एंड डॉर्म 8 नीडिंग द मिनिमम, तो डॉर्म 8 को 1 करोड़ का खर्चा लगेगा। ओके, इट विल नीड ओनली 1 करोड़ का खर्चा। नाउ आई हैव टू फिगर आउट दैट किसको कितना खर्चा लगेगा। चलो, मैं इसमें ना जूम का नहीं पावर पॉइंट का ही यूज करता हूँ माउस, इट विल बी इजियर टू सी, वो लिखता ज्यादा अच्छा है। ओके, चलो, नाउ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज लुक एट नंबर 6। नंबर 6 को देखो, नंबर 6 क्या है, नंबर 6 इवन भी है और नंबर एंड ऊपर से देखो नंबर 6 में 1 और 6 नहीं होगा बिकॉज सबका अलग अलग है। सो नंबर 6 के पास ऑप्शंस कौन से हैं, 2 3 4 एंड 5। बट नंबर 6 इज एन इवन नंबर, तो उसको मॉडरेट रिपेयर नहीं चाहिए, तो 3 4 निकल जाएगा। बट नंबर 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो उसको एक्सटेंसिव रिपेयर भी नहीं चाहिए, तो 5 भी निकल जाएगा। सो नंबर 6 कैन ओनली हैव 2 करोड़ एज द ऑप्शन, तो नंबर 6 पे 2 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। तो अब 9 के पास देखो, 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 9 इज एन ऑड नंबर। डिविजिबल बाई 3 तो एक्सटेंसिव नहीं लगेगा। अब इसके पास ऑप्शंस कौन से बचे, 3 4 एंड 5। बट बिकॉज डिविजिबल बाई 3 है तो एक्सटेंसिव नहीं लगेगा, तो 5 कैंसिल। बिकॉज ऑड है तो वैसे भी लाइट तो लगने नहीं वाला, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास हो सकता है 3 और 4, उसको वैसा ही रहने देते हैं 3 और 4। ओके, इसके पास दो ऑप्शन है, 3 या फिर 4। लेट्स गो टू नंबर 4। 4 के पास ऑप्शन कौन सा है, 3 4 5 अगेन, बट इट इज एन इवन नंबर्ड वन, तो उसको मॉडरेट रिपेयर नहीं चाहिए, तो 4 कैन ओनली बी 5 बिकॉज उसको मॉडरेट रिपेयर नहीं चलेगा बिकॉज वो इवन नंबर डॉम है। सो दैट इज वाई 4 का डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया इज 5 करोड़।
अब देखो 5 करोड़ का एक ही बंदा था, देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज 5 करोड़। ये 4 हो गया तो अब किसी के पास भी 5 करोड़ नहीं जाएगा, हम 5 करोड़ को क्रॉस कर देते हैं। सिमिलरली 2 करोड़ भी किधर भी नहीं जाएगा, उसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे भी 3 या 4 आ जाएगा, बिकॉज मुझे पता नहीं है 3 और 4 में से कौन सा होगा, सिर्फ इतना पता है लाइट रिपेयर नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू 10। 10 के पास क्या क्या हो सकता है, 10 के पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1 3 4 एंड 6, 1 3 4 6। बट नाउ अंडरस्टैंड इट, 10 इज एन इवन नंबर, तो उसको मॉडरेट रिपेयर नहीं चलेगा, सो 10 कैन ओनली बी 1 और 6। So let's write it down as 1 और 6, 1 और 6। 3 के पास कौन से ऑप्शंस है, 3 एक्सटेंसिव रिपेयर में भी नहीं हो सकता और लाइट रिपेयर में भी नहीं आ सकता, बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो ऑड। सो 3 के पास ऑप्शंस है सिर्फ 3 एंड 4, बट 3 एंड 4 में से हाँ कोई भी हो सकता है, तो लेट्स कीप इट एज 3 और 4। मुझे नहीं पता कौन सा होगा, ठीक है। बट ऑल्सो नाउ फिगर आउट गाइस, अगर इन दोनों में से कोई एक 3 या फिर 4 होने वाला है, सो बाय डिफॉल्ट एक 4 तो ले लिया, और अपने पास फोर्स कितने हैं, 4 अपने पास एक ही है, सो दैट मीन्स इधर 3 की जगह पे 4 नहीं आएगा, इट हैज टू बी ओनली 3, बिकॉज 4 का पोजीशन ऑलरेडी कोई ना कोई तो ले लेगा, 5 और 9 में से कोई ना कोई तो 4 पकड़ ही लेगा। सो दैट इज वाई वी आर सेफ टू से दैट 3 का खर्चा सिर्फ 3 का रुका होगा। नाउ लेट्स गो टू 2। 2 एज एन इवन नंबर, तो उसको मॉडरेट रिपेयर नहीं चलेगा, उसको 3 4 नहीं चलेगा। 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता, तो 1 और 6। 2 के पास 1 और 6, बट 6 वाले कितने हैं, अच्छा 6 वाला एक ले लिया है किसने, तो 1 और 6, लेट्स जस्ट कीप इट एज 1 और 6। एंड यहाँ पे 1 के पास क्या हो जाएगा, 1 के पास ऑप्शंस कौन से बचे हैं, 1 3 एंड 6। 1 और 6 तो किसी ने ले लिया, ये 2 और 6 में से 1 और 6 कोई ना कोई ले लेगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 हैज टू बी ओनली 3, बाकी कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है 1 के पास। सो नाउ वी हैव ऑल ऑफ आवर थिंग्स प्रॉपरली सॉर्टेड। 1 नंबर 1 करोड़ का खर्चा कौन कौन करेगा, इन दोनों में से कोई एक 1 करोड़ का खर्चा करेगा, दैट इज डॉर्म 2 एंड डॉर्म 10, इन दोनों में से कोई एक 1 करोड़ का खर्चा करेगा, और डॉर्म 8 1 करोड़ का खर्चा करेगा, तो ये सॉर्ट हो गया। लेट्स जस्ट मार्क द थिंग्स दैट वी नो आर गोइंग टू बी राइट, अपना सॉर्टेड है वो मार्क कर देते हैं। चलो ये हो गया सॉर्ट, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज सॉर्टेड। 2 करोड़ का खर्चा कौन करेगा, डॉर्म नंबर 6, सो वो भी सॉर्ट हो गया। 3 करोड़ का खर्चा कौन करेगा, 3 करोड़ का खर्चा 3 लोग करेंगे, एक विल बी डॉर्म 3 ये वाला, एक विल बी डॉर्म 1 ये वाला, और तीसरा वाला होगा डॉर्म 5 और डॉर्म 9, तो 3 वाला भी सॉर्ट हो गया। 4 करोड़ का खर्चा कौन करेगा, इन दोनों में से 5 और 9, तो वो भी सॉर्ट हो गया। डॉर्म 5 करोड़ का खर्चा कौन करेगा, 4 नंबर, सो वो भी सॉर्ट हो गया। एंड 6 करोड़ का खर्चा कौन करेगा, एक तो नंबर 7 करेगा 6 करोड़ का खर्चा, और दूसरा 2 और 10 के बीच में से कोई तो करेगा, तो उसमें भी हमें 2 लोग मिल गए। सो दिस इज हाउ वी हैव ईच एंड एवरी पर्सन का खर्चा, दैट किसका कितना खर्चा होने वाला है, और 4 लोगों में हमें ऑप्शंस है दैट 1 और 6 और 3 और 4। ओके, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्वेश्चंस है, हमें क्वेश्चंस के बेसिस पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट कैसे आगे बढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, नॉट नेसेसरीली ट्रू। मैं रुको इसको है ना थोड़ा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अरे आई एम सॉरी, थोड़ा एनोटेशन में प्रॉब्लम हुआ, आई जस्ट राइट इट डाउन अगेन। चलो ये हो गया। लेट्स जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। दूसरी स्लाइड पे मैं कॉपी कर देता हूँ इसको।
यहाँ पे इतना दिया हुआ है. ओके. तो गाइस नाउ लेट्स सी व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू. क्वेश्चंस पे जाते हैं डायरेक्टली. डॉम वन नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर. नहीं, वो तो सही है. हमें ढूंढना है कौन सा वाला गलत है. ओके, वी हैव टू फाइंड द फॉल्स वन. डॉम 5 विल बी नो मोर देन 4 करोड़. वो भी सही बात है. डॉम 5 का मैक्सिमम खर्चा 4 करोड़ होगा. डॉर्म 7 नीड्स एक्सटेंसिव रिपेयर. ये भी सही बात है, तो ये गलत नहीं है. डॉन 10 विल कॉस्ट नो मोर देन 4 करोड़. नहीं, डॉन 10 का 1 करोड़ या फिर 6 करोड़, 6 करोड़ का भी खर्चा हो सकता है. सो डॉन, ये ऑप्शन 4 इज नॉट ट्रू. तो दैट इज वाई दैट इज अवर आंसर. What is the cost of repairing the odd number DOMs in crores? Odd number DOMs कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7 and 9. इनका खर्चा लिख देते हैं. 3 प्लस 3 प्लस 5 का मुझे पता नहीं है 3 है या 4 है, तो 7 का लिखते हैं 6. बट आई नो अगर 5 3 होगा तो 9 4 हो जाएगा. आई ऑल्सो नो दैट अगर 5 4 है तो 9 3 हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट उनका टोटल तो 7 ही रहने वाला है. सो प्लस 7 लिख देता हूं. तो उनका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, दैट इज 12 प्लस 7 19 करोड़. ये 19 करोड़ का खर्चा टोटल हो रहा है इनका. ओके, आंसर इज 19 करोड़. लेट्स मूव अहेड. इधर भी कॉपी कर देता हूँ. अरे रे. प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड का थोड़ा जो हो रहा है वो. ओके. सपोज फर्दर दैट 4 of the DOMs in need of repair are women's DOMs. They need a total of 20 crores for repairs. Only one of the DOMs from 1 to 5 is a woman DOM. Which of the following is a woman DOM? 20 crores का टोटल खर्चा करना है, तो 20 crores में कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको ले लूं 6 करोड़ वाला, सो इफ आई सिलेक्ट नंबर 7, 6 करोड़ का खर्चा, इसमें से बस एक ही होगा जो वुमेन डॉम है. सो आई विल टेक नंबर 9 एज अ डॉम, वुमेन डॉम. मैं नंबर 10 को वुमेन डॉम ले लेता हूं और इसको मैं 6 करोड़ अज्यूम करता हूं. तो ही खर्चा हो पाएगा 20 करोड़ का, बिकॉज दिस विल बिकम 6 प्लस 6. अब मुझे 8 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए. अब समझो मेरी बात गाइस. 9 के इधर क्या आ पाएगा? 3 या फिर 4. But kindly understand that 1 to 5 is a women's dorm. 4 of the are need a total of 20 crores for repairs. Another कुछ extra information like ठीक है. अगर guys, अगर मैं इसको ले लूं 4 crores, if I take it as 4 crores, तो मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको लेना पड़ेगा, बिकॉज 4 के साथ तो सिर्फ 4 ही बैठेगा. आई विल हैव 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस 4. बट अंडरस्टैंड दैट अगर मैं इसको 4 ले लूं, 9 को 4 ले लूं, तो फिर मैं 5 को 4 नहीं ले सकता. देर इज नो वे दैट 20 करोड़ का टोटल होगा, बिकॉज 5 को मुझे 3 लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर आइदर और वाला लॉजिक है ना. तो बाय डिफॉल्ट 19 करोड़ का खर्चा हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन डू इंस्टेड, मैं 9 को 3 करोड़ ले लेता हूँ और उसके साथ डॉर्म 4 को अटैच कर देता हूँ. सो दैट इज प्लस 3 प्लस 5, गिविंग यू अ टोटल ऑफ 20 करोड़. ओके, इज इक्वल टू 20 करोड़. दिस इज द ओनली वे इन विच आई कैन मेक द वुमेन्स डॉम 20 करोड़ के खर्चे में. So which of the following is a women's dorm? 7, 9, 10 and 4 are women's dorm. 7, 9, 10, हाँ, तो ऑप्शन है ऑप्शन 4. मतलब यहाँ पे नंबरिंग गलत दिया हुआ है, बट या dorm 10 is the answer. Okay? And suppose further that 4 10 crores, same logic है, 1 or 2 points same है. What is the cost of repairing the dorm 9?
डॉर्म 9 को करने का खर्चा विल बी 3 crores. ओके, तो यहाँ पे जब तुम एग्जाम में जाओगे 3 CR मत लिखना, सिर्फ 3 लिख के आ जाना. दैट इज योर आंसर. 3 CR लिखोगे तो तुम्हें गलत मिल जाएगा. इट हैज टू बी ओनली 3 बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इन क्रोर्स. सो सिर्फ 3 लिखना. दैट इज योर आंसर. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द क्वेश्चन. चलो, नाउ वी कमिंग ऑन टू क्वांट्स. इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. उसके एनोटेशन की जरूरत नहीं है. In a 10-kilometer race, A, B, and C each run at a uniform speed, get the gold, silver, and bronze medals, respectively. मतलब A जीता, B second और C third आया. A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer. इसका मतलब क्या हुआ? जब A, हम इनको ऐसे रेशियो ले लेते हैं. जब A 10 किलोमीटर कवर करता है, 10 किलोमीटर इज 10,000 मीटर्स, तब B कितना कवर करेगा? 9,000 मीटर्स. और जब B 10,000 किलोमीटर कवर करता है, तब C विल कवर 9,000. तो मेरा काम क्या है? मुझे बस इसको सिंपल एक रेशियो में लेके आना है. दैट इज माय ओनली गोल. तो इसको ये रेशियो लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 90,000. इसको 9 से मल्टीप्लाई करने का 81,000. एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से 10 से, तो 1 लाख. दिस इज द रेशियो ऑफ ऑल ऑफ देम. तो 0 0 0 काट दो, so that we will get when A crosses 10,000 kilometer 10,000 meters, that is when B will cross 9,000 meters, that is when C will cross 8,100 meters. Then A beats C by how many meters? 1,900 meters से beat करता है. This is the easiest way to solve it. सिर्फ रेशियो से solve करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. That's it. Okay. Bottle 1 contains mixture of milk and water in 7:2 ratio. Bottle 1 में 7:2 है. मैं 1 को ऐसा 1 के साथ सर्कल लिखूंगा और बॉटल 2 को ऐसा लिखूंगा. आई विल कीप एवरीथिंग इन द सेम फॉर्मेट ऑफ मिल्क इज टू वाटर. मैं वही फॉर्मेट मेंटेन करूंगा. तो 1 का रेशियो इज 7:2. बॉटल 2 कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4. तो इनका क्या हो जाएगा? और मुझे फाइनल मिक्सचर में क्या चाहिए? फाइनल मिक्सचर इज F. मुझे चाहिए 3:1. ठीक है. What do I have to do here? मैं इसको इसका पहले रेशियो का टोटल करो. The total is 9. The total is 13. The total is 4. मुझे सबका निकालना है LCM. That is what I'm going to do. मैं सबका एक LCM निकाल दूंगा. So what will be the LCM? 9 into 13, 117. 117 into 4, 468. So 468 is the LCM of all of them. So what I will do is that मैं सबको 468 बनाने की ट्राई करूंगा. तो फॉर दैट व्हाट डू आई हैव टू डू? हमें 9 वाला जो भी है इसको 13 into 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई एंड मल्टीप्लाई. सो इफ नाउ द बॉटल 1 विल बिकम 1 2 एंड फाइनल. व्हाट आई रिकमेंड, सबको मत करो. जो इजी वाले हैं बस उनको ही करो. दैट इज मिल्क या फिर वाटर, दोनों में से किसी एक को करो. The total will become 468 of all of them. This is my own method. मैं ये हमेशा क्रैकर टेस्ट में सिखाता हूँ. I hope you guys can understand this. If not, then don't worry. अपने पास है CET, CMAT, काफी सारी एग्जाम्स है, उसमें सीख लेंगे. तो this will be into 13 into 4. That is 13 4 4 4 52. 52 into 2. That is 104. सिमिलरली यहाँ पे ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 into 4 36 से. 36 into 4 120. 120 plus 24 144. And lastly 9 into 3 9 into 13 117. 1 into 117 117. Now I have to use my line method. Line method is
बाकी सारे क्लासेस एलिगेशन सिखाते हैं, मैं मेरी लाइन मेथड है वो सिखाता हूँ. दैट इज मच इजियर देन एलिगेशन. एंड दैट इज हाउ क्रैक एवरेज स्टूडेंट सॉल्व रेशियो के सम्स एक्सट्रीमली फास्ट. वेरी सिंपली, बॉटल 1 अगर होगी तो 104 होगा, बॉटल 2 होगी तो 144 होगा, एंड उनका रिजल्टेंट विल बी 117. यहाँ से डिफरेंस देखो 13 का है, यहाँ से डिफरेंस देखो 27 का है. सो द क्वांटिटी ऑफ देम विल बी 27 is to 13, and that is your answer. 27 is to 13. So this is the way that I teach at Crack Avitas. This is extremely easy with very minimal calculation. अगर तुम्हें सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तुम ये कर सकते हो. So this is my method of solving it. Very fast and very efficient. What you can do, you can also use allegations to solve this sum, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है और एलिगेशन में मिस्टेक्स होने के बहुत चांस होते हैं. क्रैक एवरी टेस्ट की जो लाइन मेथड है उसमें कभी भी मिस्टेक होने के चांस नहीं होते. यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट इन दिस मेथड. एंड दिस मेथड आई यूज फॉर 13 चैप्टर्स. तो व्हेन आई टीच फॉर सीईटी, मैं 13 चैप्टर्स सिर्फ लाइन मेथड से सिखाता हूँ. ऑब्वियसली स्पीड मैथ्स में तो आता ही है एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप्स, मिक्सचर्स. बाद में या मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो तीनों चैप्टर्स आते हैं वो सब में मैं यही यूज करता हूँ. सब में सॉल्व हो जाता है. लाइन मेथड इज वेरी एफिशिएंट एंड दैट इज समथिंग दैट आई कीप लिमिटेड टू क्रैक एविटी स्टूडेंट्स ओनली. चलो, लेट्स सी दिस. Arun drove from home to his hostel at 60 miles per hour. While returning, he drove halfway along the same route at a speed of 25 miles per hour, and then he took a bypass which increased his driving distance by 5 miles but allowed him to drive at 50 miles per hour along this bypass. If the return journey took 30 minutes more than his onward journey, then the total distance traveled by him is इसके लिए सिंपल लॉजिक करना है. हमें पता है 60 माइल्स पर आवर, तो जितना भी डिस्टेंस होगा हम उसको डिस्टेंस को समथिंग, लेट्स अज्यूम द डिस्टेंस एज समथिंग. मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं. ये पूरा डिस्टेंस है. मैं ये पूरे डिस्टेंस को 2d ले लूंगा. 2d को कितनी स्पीड पे कवर किया मैंने? एट 60 माइल्स पर आवर. उसके बाद ये हो गया 1d. ये 1d को मैंने कवर किया 25 माइल्स पर आवर पे. और इधर ये भी हो गया 1d. ये d को मैंने कवर किया 50 माइल्स पर आवर. और बाकी का ये जो 5 माइल्स एक्स्ट्रा ड्राइव किया, वो 5 माइल्स एक्स्ट्रा भी मैं ड्राइव करूंगा 50 माइल्स पर आवर पे. सो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 50 माइल्स पर आवर. अब समझो मुझे मुझे इसमें टाइम कितना लगेगा. द टाइम टेकन बाय दिस टूवर्ड जर्नी, मतलब मुझे अगर जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 2d divided by 60, that is the number of hours that I will take. Distance divided by speed gives you time. Speed equals to distance upon time. Then time equals to distance upon speed. So ये 2d by 60, इससे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा बिकॉज मुझे यहाँ पे बोला है that the return journey took 30 minutes more. It took half an hour extra. Then this will be equal to कितना टाइम? d divided by 25 plus d divided by 50 plus 5 divided by 50. ये आ गया. ओके, सो 5 divided by 50 is 1/10. इन दोनों का सम कर देते हैं एंड ये 2d by 60. सो 2d by 60 is d by 30. d by 30, इसको अगर हम ले लेंगे 2d by 50 और इसको ऐड करेंगे तो आई विल गेट 3d by 50 minus 3d by 50 is equal to 1/10 माइनस 1/2 है तो उसको 5/10 ले लेता हूं. 5/10. सो दिस विल बिकम, अगर ये 30-50 है सो आई विल टेक उनका एलसीएम ले लूंगा. इसको 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 5d minus 9d will be minus 4d divided by 150 is equal to 4/10.
-4/10, माइनस माइनस दोनों साइड पे है तो माइनस को हटा दो, आई विल गेट 4D इक्वल्स टू 4/10। अब बाद में इसमें हमें कट करना पड़ेगा, आई विल गेट, ये निकल गया, ये 0 0 निकल गया, D इक्वल्स टू 15, मतलब D इज 15। तो मुझे जाने का डिस्टेंस कितना हो गया, 2D। जाते टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग 30, आते टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग 30, और ऊपर से 5 माइल्स एक्स्ट्रा। सो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया 65, ऑप्शन 3। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं ऑप्शंस भी यूज कर सकता हूँ, बट ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर हो जाएगा। तुम्हें सबको अगर 60 माइल्स लिया तो यू विल हैव टू डिवाइड 55 एज डी, एंड अगर 65 ले लिया तो तुम्हें उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस सम विल बिकम टफर फॉर यू इफ यू यूज दी ऑप्शंस। इसमें अगर प्रॉपर तरीका पता है तो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात, ये वाले में, आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव। तो समझो अगर, अरे, if there were 100 shirts produced, 85 are not defective. उसमें से 20 are sold in the domestic market and remaining are sold for export. 20% इसमें से, इसका 20% is domestic, so 80% will be export. तो इसका 80% will be, इसमें से 20% माइनस करो, giving you 68, 17 माइनस किया, तो 68 is 8840. What is the number of shirts produced in the factory? You have to basically just cross multiplication. 8840 into 100 divided by 68. 4 into 221, 4 into 17, 17 into 130. So the answer will be 13,000, option B, Bombay. That is how you get the solution. अब ये वाला सम देखो, यहाँ पे ये देखो, ए एंड बी आर इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑपोजिट साइंस है, such that a plus 3 square by b square is equal to 9/1. तो इन दोनों बाजू स्क्वायर रूट ले लो, सो a plus 3 by b इज इक्वल टू +or-3, क्योंकि मुझे पता नहीं है, दोनों का स्क्वायर हो सकता है ना। सो व्हाट आई टेक इज दैट a plus 3, let's take it this way, a plus 3 is equal to +3b, और a plus 3 इक्वल्स टू -3b। इनको एक एक इक्वेशन बना देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, a-1 स्क्वायर b-1 स्क्वायर 4/1। ओके, तो इसमें भी सेम लॉजिक से a-1 by b-1 विल बी इक्वल टू +or-2। तो दिस विल बी a-1 इज इक्वल टू +b-1 +2b-2, सॉरी, +2b-2। तो हमें पहला इक्वेशन मिलेगा a+1 इक्वल्स टू 2b, और व्हाट वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन s, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो a-1 is equal to -2b plus 2. So I will get it as a-3 is equal to -2b. ये मुझे 4 इक्वेशंस आ गए हैं। सो आई विल जस्ट राइट डाउन दीज 4 इक्वेशंस यहाँ पे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। a-3b is equal to -3, और a+3b is equal to -3, 1 2, और ये इक्वेशंस दैट इज
a minus 2b equals to -1 and a plus 2b is equal to 3. ये चार इक्वेशंस हमें मिल गए हैं. Let's just erase everything else on the board. Just 1 minute. बुक में लिखना बहुत ज्यादा अच्छा है स्क्रीन पे लिखने से. हाँ, अरे माउस ये रहा. आई एम सॉरी, ये थोड़ा इट्स टफ टू यूज दिस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है हमारे साथ, दैट ये दोनों एक केस है जिसमें ये प्लस और ये माइनस है, पहला इक्वेशन. एंड ये दोनों केसेस है जिसमें ये प्लस और ये माइनस है. नाउ इट माइट बी दैट हम ऑब्वियसली इट विल बी 1 और 3 और 2 और 3 और 2 और 4 और 1 और 4, ये सारे केसेस बनेंगे दैट दे आर. हम +3 माइनस माइनस वाले लेते हैं. यहाँ पे जो प्लस और -2 आया था, पहले वाला इक्वेशन +3 और दूसरा वाला इक्वेशन -2, और पहला वाला इक्वेशन +3 दूसरा वाला इक्वेशन ऑल्सो +2, वैसा ले सकते हैं. सो हमें इक्वेशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू सॉल्व विद इक्वेशन 1 and 3. तो a minus 3b इक्वल्स टू -3, a minus 2b इक्वल्स टू -1. इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई विल गेट b इक्वल्स टू -3 -1, दैट इज -2. और a का वैल्यू क्या आ जाएगा अगर मैं b को इधर -2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो a plus 6 equals to -3, तो a will be equal to -9. बट वी नो दैट a और b दोनों का वैल्यू ऑपोजिट साइंस है, तो ये गलत हो जाएगा. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वायबल. ये गलत है अपने लिए. लेट्स ट्राई टू टेक दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, पहले वाले को लेते हैं. लाइक पहले वाले का नेगेटिव साइन ले लेते हैं, मतलब माइनस प्लस. सो a +3 a -2, इन दोनों को we will subtract. तो I will get 5b is equal to -3 minus -1, so that is -2. b equals to -2/5. इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. b equals to -2/5. अगर मैं इसको माइनस सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई विल गेट, बट नहीं, दे आर इंटीजर्स. इंटीजर्स है, ये इंटीजर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको भी कैंसिल कर देंगे. तो दिस इज ऑल्सो गॉन. देन लेट्स ट्राई द थर्ड वन. नाउ वी विल ट्राई प्लस माइनस. ये वाला हो गया तो इसका दोनों के साथ कैंसिल हो गया, ये नहीं मिल रहा है. वी विल टेक प्लस एंड माइनस 1 and 4. सो a -3b a + 2b, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आई विल गेट -5b इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, -6. सिमिलरली फ्रैक्शन नहीं मिल रहा, फ्रैक्शन मिल रहा है 6/5, विच इज नॉट आवर केस. हमें इंटीजर्स निकालने हैं, सो दैट इज वाई दिस इज गॉन. एंड फाइनली द लास्ट केस दैट वी हैव इज, मतलब हमने एलिमिनेट किसको कर दिया, अब हमने पहले वाले को पॉजिटिव एलिमिनेट कर दिया. दिस विल नॉट बी. लेट्स टेक माइनस माइनस. a + 3b a + 2b इज इक्वल टू, इधर ये आ जाएगा. तो लेट्स ट्राई. a, इसको माइनस करेंगे, लेट्स सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज और टू इक्वेशंस. सो आई विल गेट b इज इक्वल टू -6. अगर मैं b इक्वल टू -6 को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा -12. a -12 इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू 15. ये आ गया अपना आंसर. दोनों इंटीजर्स है, दोनों ऑपोजिट वैल्यूज वाले हैं. ओके, सो a² बाई b² की वैल्यू निकालनी है. तो a² बाई b² विल बी 225 अपॉन 36, विच विल बी 9 से डिवाइड करेंगे तो 25/4. ये आ गई अपनी वैल्यू, विच हैज टू बी ऑप्शन 4. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. ट्रायल एंड एरर, मतलब बहुत ज्यादा स्टेप्स थे ये वाले सब में. चल लेट्स टेक दिस. 9 raised to 2x - 1 minus 81 raised to x - 1 equals to 1944.
सबसे पहले तो ये देखो दोनों 3 की पावर्स है, तो उनको 3 के पावर्स के फॉर्मेट में लेके आओ। सो दैट इज, ये 3 स्क्वायर है, दिस विल बी 3 इंटू 4x-2 माइनस ये 3 रेज टू 4 है, सो 3 इंटू 3 रेज टू 4x-4 इज इक्वल टू 1944। गाइज ये देखो, 3 रेज टू 4x-2 एंड 3 रेज टू 4x-4, मतलब द डिफरेंस इन पावर विल बी ओनली ऑफ 2। अगर ये 3 रेज टू, ये टोटल वैल्यू 3 रेज टू 5 है तो ये 3 रेज टू 3 हो जाएगा। अगर ये 3 रेज टू 7 है तो ये 3 रेज टू 5 हो जाएगा। अगर ये 3 रेज टू 10 है तो ये 3 रेज टू 8 हो जाएगा। व्हाट आई वेरी सिंपली डू, मैं देखता हूँ 1944 कब आता है। लेट्स टेक 3 के पावर्स, सो दैट इज 3, 9, 27, 81, 243, 729, 729 टू 16687, 2187, ये देखो यहाँ पे आ गया। 2187 माइनस 243 will give me 1944. So 1944 is basically 3 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 raised to 7 minus 3 raised to 5. 3 raised to 7. So 4x minus 2 equals to 7. So x will be equals to 9/4. ये आ गया हमें अपना x का वैल्यू। वेरी इजी सम, इसमें बस तुम्हें लॉजिक लगाना था दैट दो पावर्स का डिफरेंस है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो ये वाला सम पढ़ते हैं। फंक्शन f(x) equals to x square and gx equals to 2 raised to x for all real x. Then the value of this at x equals to 1. x equals to 1 निकालना है। देखते हैं इसकी वैल्यू। gx is equal to 2 raised to x, तो 2 raised to 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो gx का वैल्यू हो जाएगा 2। f2, f2 will be 2 square, so that is 4. 2 square is equal to, okay, I will write it down in a simpler fashion for you. पहले हम ये निकालते हैं f gx। gx का वैल्यू क्या आ जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू 1, gx का वैल्यू विल बी 2 रेज टू 1, सो दिस विल बी 2 रेज टू 1 f। अब मेरा f थोड़ा अलग दिखता है, एंड दिस इज f, ओके। नाउ f रेज टू 2, 2 रेज टू 1 इक्वल्स टू 2, सो f2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो दैट इज ये f इधर 4 आ जाएगा। f4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, सो दिस विल बी 16। ये आ गया पहले वाले का वैल्यू। बाद में gx, x equals to 1, तो this will be 1 square, so g of 1 square is equal to g of 1. अब g of 1 is 2 raised to 1, so that is 2. So finally we get 16 plus 2 is equal to 18. बस इतना ही करना है, वेरी इजी। ये वाला देखो अच्छे से। Let ABC be a right isosceles triangle with hypotenuse BC. इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। I will get B C एंड यहाँ पे आ जाएगा A। Let BQC be a semicircle away from A, तो मतलब ये BQC यहाँ आ जाएगा। BPC be an arc of center circle centered at A, मतलब हम इसको रेडियस ले लेंगे। This is P. If AB has length 6 centimeter, find the region enclosed by BPC BQC, मतलब ये वाले रीजन का एरिया निकालना है हमें। हो जाएगा, काफी इजी लग रहा है। चलो
बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो BQC का पूरा एरिया है उसमें से BPC का एरिया निकाल देना है। उसके लिए हमें BPC निकालना पड़ेगा। BPC कैसे निकालेंगे? लेजर पॉइंटर। सो हमें BQC का एरिया निकालना है, ये पूरा BQC। BQC में से BPC को माइनस कर देंगे। पर BPC का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये पूरे सेमी सर्कल, ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालेंगे, जिसमें से ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, देन वी विल गेट BPC का वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट दिस। देखो, अगर हमें ABC और BPC का वैल्यू निकालना है, BPC का एरिया कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर इज 6, so pi into 36 divided by 4 is equal to 9 pi. This is area of our BPC. Okay. अब हमें इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया विल बी is equal to half into base into height, half into 36, that is 18. So we get area of BPC is equal to 9 pi minus 18. Now we have to figure out what is the area of semicircle BQC. सेमी सर्कल BQC के लिए मुझे उसका पहले रेडियस पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए, बट आई नो दैट द साइड ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 6, so this will be 6√2. दिस इज द डायमीटर, तो हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 3√2 स्क्वायर, which is equal to divided by 2, so which is 3 square 9 4 18, 18 by 2 9 pi, तो इसका भी वैल्यू आ गया 9 pi. Now as I said, what do I need to figure out? BQC minus BPC, so that is 9 pi minus 9 pi minus 18, so finally we get the answer as 18. हमें मिल गया अपना आंसर, which is option 2. I hope you guys understood. नाइस, सम सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ ज्योमेट्री के थोड़े बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए और कुछ नहीं है. A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio, ये इतने volumes है. The percentage by which the sum of the surface areas of these 5 cubes exceeds the surface area of the original cube is nearest to. ये nearest to भी नहीं है, हमें perfect value मिल सकता है ये वाले sum में, हम बहुत बार देखा होगा. So the point behind this sum is that एक क्यूब जब हम तोड़ते हैं तो एक क्यूब के 100 टुकड़े करो या 200 टुकड़े करो तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो इन सब का वॉल्यूम, लेट्स टेक x एज द साइड, तो इन सब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1x क्यूब, 2x क्यूब, 1x क्यूब, 1x क्यूब, 8x क्यूब, 24x क्यूब एंड 27x क्यूब. वेट, आई यूज अ लेजर पॉइंटर. इन सब के वॉल्यूम्स विल बी 1x क्यूब, 1x क्यूब, 8x क्यूब, 27x क्यूब एंड 27x क्यूब. सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना फाइनल? द टोटल वॉल्यूम दैट वी कैन हैव इज x क्यूब को कॉमन ले लो, 1 + 1 + 8 + 27 + 27, ये आ गया, विच इज इक्वल टू 64x क्यूब. एज आई सेड, बड़े क्यूब का और छोटे छोटे सारे क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम सेम ही रहेगा. तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम इतना है, तो बड़े क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? साइड ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू इसका क्यूब रूट, दैट इज 4x. तो बड़े वाले क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 × 4x स्क्वायर, सो दैट इज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 × 4x स्क्वायर, 6 × 16x स्क्वायर.
मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रखो, you'll अंडरस्टैंड व्हाई। और ये जो सारे छोटे छोटे क्यूब्स है, इनका साइड कितना हो जाएगा? इसका साइड विल बिकम x, इसका x, 2x, 3x, 3x। Why? Because this is the volume. If 27x cube is the volume, then 3x will be the side. Same उसका cube root ले लिया, nothing else. So I'll have to find out what is the total surface area of all the cubes combined. तो इन सारे क्यूब्स का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 4x², 9x², 9x², और इन सब को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब में 6 है, मैं 6 को कॉमन ले लेता हूं। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? दैट इज 1 2 6 6 + 18 24, 24x² द होल इनटू 6। ओके, अब मुझे पूछा है हमारा सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो गया? इट इंक्रीज बाय, अब देखो ये 16 था, ये 24 है, सो इट इंक्रीज बाय 6 × 8x² divided by the original surface area, that is 6 × 16x²। तो 6 कैंसिल हो गया and we get it as 50%। ये इसका 50% है एग्जैक्टली, बिकॉज इसका वैल्यू आ जाता है 1/2। ओके, इतने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस सम इन अ वेरी इजी फैशन। In how many ways can 8 identical pens be distributed among Amal, Bimal and Kamal so that Amal gets at least 1 pen, Bimal gets at least 2 pens and Kamal gets at least 3 pens? सिंपल सा लॉजिक है, हम ये तो मैन्युअली ही कर सकते हैं। अमल, बिमल एंड कमल। तो पहले अमल को एटलीस्ट 1 पेन तो मिलेगा, तो इसको एटलीस्ट 1 पेन, इसको 2 पेन, तो इसको कितना मिल जाएगा? बचे हुए सारे पेन इसको दे दो। धीरे धीरे एक एक हम शिफ्ट करते जाएंगे कमल में से। 1 तो यहाँ आ जाएगा 3 and 4, और एक शिफ्ट करेंगे 1 4 and 3, ये आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा क्योंकि कमल का 3 से कम नहीं हो सकता है, बराबर। सो लेट्स स्विच, अब हम अमल को 2 पेन्स दे देंगे। सो अमल विल हैव 2 पेन्स नाउ। 2 पेन्स है तो हम इसको भी 2 पेन्स दे देंगे और इसके पास बच जाएगा 3 पेन्स, अरे 4 पेन्स, बिकॉज टोटल 8 है, राइट। सिमिलरली अब वहां से वापस एक शिफ्ट करेंगे। आई विल हैव 2 3 and 3, इस ऑर्डर में हम पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो गया, अब 3 से कम नहीं हो सकता है कमल का। अब मैं अमल को 3 पेन्स दे दूंगा। अगर मैं इसको 3 पेन्स दे दूं तो बिमल को 2 पेन्स, तो बाय डिफॉल्ट कमल को 3 ही पेन्स मिलेगा। हम और कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं कमल में से निकाल नहीं सकता। दैट्स इट। तो मेरे पास सिर्फ ये 6 तरीके हैं कि मैं उनमें पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। 6 ways, दिस इज इट। कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वो सब का मत करना, इसमें ब्लैंक्स लगा दिए, ये लगा दिया, वो लगा दिया, इसमें 4C2 निकालोगे, वो सब मत करना गाइस, इट्स यूजलेस, वेरी यूजलेस। ठीक है, चलो। If the product of 3 consecutive integers is 15600, then the sum of the squares of these integers is, I have always seen that लोग जब ये sum solve करते हैं ना, तो वो लोग 3 integers को लेते हैं, x, x+1 and x+2. But this causes a lot of issue when you are multiplying them. So instead what I recommend is take x minus 1, take x and take x+1. It is much easier to multiply this. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² minus x the whole into x+1. So that is x³ plus x² minus x² minus x the whole equals to what? ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है? 15600, which is these two get cancelled. x³ minus x is equal to 15600. Now if you guys are familiar with cubes, which I strongly recommend cubes याद रखना चालू कर दो, मतलब क्यूब्स तुम्हें अब तक याद रह जाने चाहिए थे तो तुम्हें पता चलेगा ये 25³ minus 25 है, so that is x equals to 25.
So now I have to figure out what is the sum of the squares of these integers. तो मुझे तीनों के squares निकालने पड़ेंगे. What are the three integers? 24, 25, 26. What are their squares? 576, 625, 676. Okay? इनको बस ऐड कर देना है. चलो 555, 666, 612, 17, 1 carry over, 8, 10, 17, 1 carry over, 666, 18. So this gives you 1877 as your answer. Give me your answer as option D. That is your answer. I hope you guys understood. And with this, we are done officially. ये answer की है. With this, we are officially done with the CAT 2017 का paper. This paper was set by IIM Lucknow. It was quants was very easy. English थोड़ा tough था, but LRDI was something जो हमने पहले कभी देखा नहीं था, काफी नया था. So that makes it tough. I hope you guys understood this. If you guys like the video, then please click the like button and subscribe to the channel. That would really help us. And please comment में thank you ऐसा कुछ भी लिख दो. It will be very helpful for me. Bye everyone.